All right, everyone. So let's start the paper. IGCSE, paper 1, multiple choice 4, October, November 2024, variance 13. Let's see what we have in this paper. Which conditions cause gas particles to move the fastest and furthest apart? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा विच इज व्हाई दे विल मूव फ्रॉम ईच अदर सो टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज करेंगे सो सिनेरियो होगा आपके पास ओके टेम्परेचर राइजेस kinetic energy increases movement of molecule increases all right and as a result molecules will move away from each other हम सब जानते हैं कि गैशियस पार्टिकल्स जो हैं अगर प्रेशर हाई कर दें तो वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे और जब वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जबकि एग्जामिनर यहाँ कह रहे हैं कि दे नीड टू बी फर्दर अपार्ट सो लो प्रेशर मस्ट बी यूज because at low pressure gaseous molecules are not compressed और जब गैशियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के करीब भी नहीं आएंगे सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर makes the gaseous molecules to move the fastest and the furthest apart, okay, and therefore C is going to be the right answer. Question number 2, which statement describe a liquid at room temperature? Liquid, a sample of liquid has a fixed volume and shape. Fixed shape नहीं होती, it takes the shape of its container. No fixed shape. It has fixed volume but no shape, which is why A is incorrect. A sample of liquid does not have fixed volume or shape. It does have fixed volume. So ये not fixed volume होता है इसका, shape fixed नहीं होती. इसका मतलब statement is wrong. And so B is incorrect. The particles are touching but can move by sliding over each other. Yes, due to random motion of the particles, they can slide over each other. Let's talk about D also. The particles spread out and fill all available spaces. पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर उस वक्त होंगे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी गलत तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑब्वियसली अ कंपाउंड एक्स as the melting point 71 degrees Celsius and boiling point 375 degrees Celsius. So which statement about X is correct? X is a liquid at 52 degrees Celsius. भाई जब melting point 71 है तो 52 पे तो वो मेल्ट ही नहीं होगा लिक्विड में ही नहीं कन्वर्ट होगा राइट नॉट इन लिक्विड ऑप्शन इनकरेक्ट it is a liquid at 69 degrees Celsius. At 69 degrees Celsius, not in liquid, क्योंकि मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में वो 71 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और 380 के ऊपर गैस हो सकता है ये ठीक है लेकिन पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है which is why B is incorrect. Liquid at 75 degree Celsius, that's true. गैस एट 350 नहीं भाई जब बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 375 है यानी वो इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा सो 350 पे बॉयल नहीं हो सकेगा इसलिए ये भी गलत राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डी because at this temperature it will turn to liquid and at this temperature it will turn to gas. Okay, what is the nucleon number of an atom?
Well, nucleon number आपने पढ़ा है, sum of protons and neutron is nucleon number. So sum of proton and neutron is basically C. C is going to be the right answer. Next question. An atom has 3 electron shells. If it has 3 electron shells, which means it is found in period 3 of the periodic table. There are 3 electrons in the outer shell. If 3 electrons in the outer shell, then it means it is found in group 3 of the periodic table. How many protons and how many neutrons are in this atom? 3 electrons shell है, तो इसका मतलब period 3 से हुआ. So period 3 के जो एलिमेंट है वो मैं लिख देता हूं आपको. सोडियम, एल्यूमिनियम, oh my goodness, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. ये पीरियड 3 है. इसके बैलेंस शेल में इसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. और एग्जामिनर हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल. तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका मतलब ये ठीक है. और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13. इसका मतलब इसमें 13 प्रोटॉन्स होंगे, राइट? अगर इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं तो ऑब्वियसली 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉम्पोजिशन के हिसाब से. और 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 becomes 14 न्यूट्रॉन्स होंगे. So examiner is technically talking about aluminum in period 3. Aluminum की composition ये है, इसमें 13 protons हैं and 14 neutrons हैं. So right answer obviously is going to be an A. Which row gives the number of covalent bonds in one molecule of ammonia and in one molecule of hydrogen chloride? आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ covalent bonds in one molecule of ammonia. So let's draw the structure of ammonia. ये अमोनिया है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, so you will get 3 covalent bonds in one molecule. So examiner is looking for the number of covalent bonds, so 3 covalent bonds हैं. Let's talk about one molecule of हाइड्रोजन क्लोराइड. दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड. और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड को मैंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था पढ़ाते हुए. तो इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड होगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए ऑब्वियसली. Which statement about the structure and bonding in diamond is correct? याद रखिएगा कि डायमंड का जाइंट स्ट्रक्चर होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. So each carbon atom in diamond is bonded to 3 other carbon atoms only. 3 other carbon atoms नहीं है, टेक्निकली ये 4 other carbon atoms हैं, इसलिए ये गलत. Diamond contain many strong covalent bonds. That's true. Diamond contain layers of carbon atoms. जनाब layers of carbon atoms जो हैं वो डायमंड में नहीं होती, ग्रेफाइट में होती. Graphite has a layer structure. Diamond has a joint structure. That's true. So 2 and 4 is correct, and therefore C is going to be the right answer. Question number 8. Magnesium burns in oxygen to form magnesium oxide. This is the equation. Which mass of magnesium oxide is formed? So examiner is looking for the mass of magnesium oxide, which means first of all we need to find out the MR of magnesium oxide. Magnesium is 24, oxygen is 16. So it's going to be how much? 40, I believe. 24 plus 16 is going to be 40. Okay. When 48 gram of magnesium is burned. So we have mass of magnesium, and therefore we can find the moles of magnesium first.
ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 24, तो आपके पास मोल्स हो जाएंगे 2. Now look at the equation. Magnesium and magnesium oxide, both of them have same molar ratio, which means जितने मोल्स आपने मैग्नीशियम के कैलकुलेट किए एग्जैक्टली वही मैग्नीशियम ऑक्साइड के. मैं यहाँ कोट कर देता हूँ कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हो गई. मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैलकुलेट करना है. सो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा MR से, which is 40, so it's going to be 80 gram. So right answer obviously is going to be C. Question number 9. Propane C3H8 is basically an alkane. An alkane is a saturated hydrocarbon. Is burnt in a limited amount of oxygen. When we say limited, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है. और जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है. और अगर मैं वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देता तो फिर कार्बन सूट और वाटर बनता. नाउ ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती. ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती. कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, यहाँ पर भी वाटर बन रहा है. ये C3H8 है, ये भी C3H8 है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है. लेट मी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन नाउ, राइट. यानी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बी और डी में बिल्कुल सही दिए हैं, तो बैलेंस देखते हैं. यहाँ कितने कार्बन है? 3. माय बैड, होल्ड ऑन. यहाँ कितने कार्बन है? 3. यहाँ कितने कार्बन है? 3. यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 8. यहाँ पर 4 कीजिए तो 4 हाइड्रोजन टाइम्स 2 8. अब यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 7 ऑक्सीजन है. आपने यहाँ पर 4 लगा दिया तो 4 टाइम्स 2 इज 8 ऑक्सीजन. सो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पर टोटल 7 ऑक्सीजन है. तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, which is why this equation is also incorrect. So right answer obviously is going to be D, because इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 6. यहाँ कितने हैं? 6. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 16. यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 16. Let's talk about oxygen. 8 plus 6 14. यहाँ पर भी कितने हैं? ऑक्सीजन 14. So this equation is balanced now. The isotope of which element is used to define the relative atomic mass of other elements? Carbon. Because हम जब भी definition देते हैं relative to 1/12, the carbon 12 isotope की बात करते हैं, है ना? That was the definition given in the class. So that's a very straightforward fact. We should remember that. 11. What is the definition of electrolysis? Decomposition of an ionic compound, molten or in aqueous, by the passage of electric current is called electrolysis. So right answer obviously is going to be B. Let's talk about this. Formation of a positive ion by the removal of electron using an electric current. No. That's not the definition of electrolysis. That's the definition of cations. Okay. ये नहीं, ये तो definition ही गलत है, बात ही खत्म. The substance containing ions through which electric current can pass. Not chemical decomposition नहीं हो रही ना, इसलिए गलत. The coating of a metal, coating नहीं होती कभी भी, ठीक है. Electrolysis में chemical decomposition होती है, उसके बाद फिर कोई और process होता है coating शोटिंग का. Which statement about electroplating a copper spoon with silver is correct? यार electroplating करना चाहते हैं हम, तो जाहिर सी बात है उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है तो सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं. कैथोड जो है वो कॉपर स्पून होगा, क्योंकि इस कॉपर स्पून पे सिल्वर प्लेट करना है. और इसका जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर हो, तो इम्प्योर सिल्वर हो. ओके. नेक्स्ट, both anode and cathode are made up of carbon. Not at all, because cathode किस चीज का बना, एनोड किस चीज का बना, ये बता दिया. तो कॉपर स्पून इज एट एनोड, गलत.
It has to be at cathode. Aqueous copper 2 sulfate is the electrolyte. Wrong. Silver is formed at the negative electrode. That's true. और वही सिल्वर मेटल जो है वो फिर डिपॉजिट होगा एट कैथोड. इस तरह से सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी. Which road describe the reaction pathway diagram and energy changes in an exothermic reaction? यार हम सब जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is lower than reactant. और दूसरी बात है डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी. सो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का है. नेगेटिव का मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी. एनर्जी यहां भी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहां भी रिलीज हो रही है. रिएक्टेंट्स लोअर देन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स हायर देन प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम यहां पर है और यहां पर है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली. Okay, question 13b. Let's move on to the next question. Question 14. The table shows the initial and final temperature of 4 different reactions. Which reaction is endothermic? यार इनिशियल टेम्परेचर कम था फिर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है. Because whenever temperature of the reaction mixture rises, it is an exothermic reaction. Temperature ज्यादा था फिर कम है, ये एंडोथर्मिक होगा. because temperature of the reaction mixture decreases is endothermic. No change, क्योंकि जो टेम्परेचर इनिशियल था वही बाद में है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ. और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी एक्सोथर्मिक है. राइट. तो एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर एन एंडोथर्मिक चेंज. तो एंडोथर्मिक तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन 2 में है, which is why C is going to be the right answer. Which process is a chemical change? Chemical change. Chemical change. Cooking an egg is a chemical change. Why? Because egg contain protein. When you heat it or when you boil it or when you cook it, proteins will get denatured. इसका मतलब जब प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा वो प्रोटीन ही रहेगा. तो प्रोटीन से नॉन प्रोटीन प्रोडक्ट्स बन रही हैं, इसका मतलब डीनेचर हो जाएगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. बॉइलिंग वाटर. सो अगर मैं वाटर को लिक्विड स्टेट में ले रहा हूं और मैं उसको बॉईल कर दूं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फॉर्मूला तो एज इट इज है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है. डिसॉल्विंग शुगर. शुगर सॉलिड होता है, वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो जाहिर सी बात है शुगर ही रहेगा लेकिन लिक्विड हो जाएगा. तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है. मेल्टिंग आइस क्यूब्स. आइस इज सॉलिड, मेल्ट करूंगा तो लिक्विड वाटर, इसका मतलब फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है. तो आप नोट करें, अगर आपको ये समझ में ना आए ना कि यार कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो जो रॉन्ग है उनको निकाल लो. ये भी रॉन्ग क्योंकि फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, तो इसका मतलब ये आंसर होगा. ठीक है. और ये आंसर क्यों है, इसकी रीजन ये आ गई है, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर होता है और जब प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तो प्रोटीन की नेचर ही चेंज हो गई. इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. A student reacts strips of zinc with dilute sulfuric acid. Strips of zinc और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है. So obviously zinc sulfate बनेगा which is soluble in water and hydrogen gas is given out. And obviously examiner is saying measures the time taken to produce 100 cm cube of hydrogen. Okay. The experiment is repeated using different conditions. The results are shown in the table. Experiment 1 में volume of टाइम लगा 250 और एक्सपेरिमेंट 2 में टाइम लगा 100. तो इसका मतलब जब ज्यादा टाइम लिया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन
कम था, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि ज्यादा टाइम ले रहा है गैस कलेक्ट करने में, 100 था तो इसका मतलब फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कम टाइम ले रहा है। वो कह रहा है विच चेंजेस इन कंडीशंस प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट शोन इन एक्सपेरिमेंट 2। भाई जाहिर सी बात है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो हो सकता है कंसंट्रेशन आपने ज्यादा ले ली हो सल्फ्यूरिक एसिड की, हो सकता है कि जो जिंक आपने यूज किया वो पाउडर फॉर्म में हो, क्योंकि आपने पहले स्ट्रिप यूज की हुई थी ना, तो हो सकता है आपने पाउडर फॉर्म ले लिया, तो पाउडर फॉर्म सही है। एसिड अगर डाइल्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड ऑब्वियसली आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टेक्निकली एग्जामिनर ये कहना चाह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जो हमने क्लास में पढ़े वो बता देते हैं। टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को मैंने रूल आउट कर दिया क्योंकि उसने डाइल्यूट कर दिया है सबको, इसलिए ये तो गया। तो बाकी क्या बचते हैं, बाकी टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया बचते हैं, उन पे चेक लगाया। 1, 3 एंड 4 आंसर, राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ओके, नेक्स्ट, when blue copper to sulfate is heated, blue copper to sulfate is basically CuSO4 dot 5H2O. White solid and water is formed. So this white solid is basically anhydrous copper to sulfate, which is CuSO4. The white solid turns blue and gives out heat when water is added to it. Okay, the reverse process हो गया. ओके, सो टेक्निकली आप जब इसको हीट करेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहां पर गिव्स आउट हीट बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। Which term describe the blue copper to sulfate and the reaction? Hydrated blue copper to sulfate and reaction cannot be reversed, I believe. नहीं, रिवर्स तो हो सकता है बिकॉज अगर एंडो से एक्सो हुआ है तो रिवर्स हो रहा है ना, पहले आपने हीट किया फिर आपने उसको कंबाइन कर दिया, तो रिवर्स हो सकता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं इक्वेशन के थ्रू। ये था सिनेरियो आपके पास, दिस इज योर हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, आपने इसको हीट किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट बन गया और ये वाटर आ गया। अब आपने क्या किया, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट को वाटर के साथ ट्रीट करवाया तो हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट बन गया और एनर्जी भी रिलीज हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Which statement about a redox reaction are correct? Oxidation is a gain of oxygen, that's true. Both oxidation and reduction takes place in a redox reaction, that's true. Reduction is the gain of oxygen, reduction is basically the loss of oxygen. So 1 and 2 is correct, right answer is going to be an A. 18A. 19. Which row identifies a basic oxide and describe an alkali? Basic oxide metal oxides को कहते हैं, और एल्कली बेसिकली वाटर सॉल्युबल होता है।
So आप लिखोगे when base is dissolved in water. So sodium oxide बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इनसॉल्युबल बेस नहीं है, सोडियम ऑक्साइड इज अ सॉल्युबल बेस। देखो ना, ये तो मैंने करवाया आपको ग्रुप 1 में। सोडियम ऑक्साइड है, वाटर में प्लेस करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये एल्कली है, और ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द एसिड बेसिस, सॉरी, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन ऑक्साइड्स आल्सो इन पीरियोडिक टेबल। So right answer obviously is going to be B. Which indicators turns blue when added to aqueous ammonia? By the way, aqueous ammonia is a weak alkali. Weak alkali, weak base. Okay. So aqueous ammonia changes litmus paper. Aqueous ammonia changes thymol-phthalate indicator. Aqueous ammonia changes universal indicator also. So इसका मतलब aqueous ammonia का इन तीनों indicators के ऊपर turns blue. Oh yes, thymol-phthalate in alkali turns blue. Red litmus से blue होगा, universal indicator भी blue होगा. So right answer is going to be an A, I believe. क्योंकि वीक एल्कली में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ब्लू होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन 21, ammonium chloride reacts with solution X to produce alkaline gas Y. The equation is shown. Okay. Alkaline gas. So ammonia is the only alkaline gas. And this is your ammonium salt. So when any ammonium salt react with any alkali, the solution X is going to be an alkali. Then always ammonia gas is given off. Which row identifies X and Y? X is alkali, so it's going to be sodium hydroxide. Acid to galat ho gaya. And Y is ammonia. So Y is ammonia. Right answer is going to be C. The solubility of some salts is shown. Which two aqueous solution produces an insoluble salt when mixed together? अगर मैं बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट दोनों को मिक्स करूंगा तो मुझे बेरियम सल्फेट नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो सल्फेट आयंस हियर. लेड टू क्लोराइड इनसॉल्युबल, लेड टू नाइट्रेट सॉल्युबल, लेड टू सल्फेट सॉल्युबल, लेड टू कार्बोनेट. ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्युबल ही बनेगा, यानी जिंक क्लोराइड बनेगा एंड बेरियम नाइट्रेट बनेगा, तो इट विल रिमेन सॉल्युबल, राइट? सो ये ऑप्शन गलत. देन ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो ये तो सॉल्युबल ही रहेंगे आपस में रिएक्शन करने पे, तो ये भी रहेगा ऐसे. मैं लिख देता हूं ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. सो व्हेन टू नाइट्रेट्स कंबाइन टुगेदर solution remains soluble. Then lead to nitrate and potassium carbonate. So this is your lead to nitrate. My God, hold on. और पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये बनेगा लेड कार्बोनेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट. ये इनसॉल्युबल है. कैसे पता चला? क्योंकि ये लेड का कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, सही है. पोटेशियम नाइट्रेट एंड जिंक सल्फेट, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली जिंक नाइट्रेट बनाएंगे जो कि सॉल्युबल है, और पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे which is also soluble. तो ये भी गलत. राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. ऑलराइट. Hold on, let me check one more thing. Okay. 23. The table shows some properties of the halogens. Halogens are found in group 7 of the periodic table. And they contain 7 valence electrons. Which statement describes astatine? Oh my goodness, astatine, one by one.
इट हैज अ येलो गैस एट रूम टेम्परेचर। नहीं जी, अगर ये ब्लैक है तो ये भी ब्लैक होगा। एस्टाटीन इज ब्लैक एट आरटीपी एंड इट इज अ सॉलिड, एंड ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज अ ब्लैक लिक्विड। लिक्विड कह रहे हैं, इट इज सॉलिड। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन बट लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन। रॉन्ग। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आयोडीन से ज्यादा होगा। So the melting point is higher than the melting point of both iodine and bromine. That's true. क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आयोडीन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ब्रोमीन से भी ज्यादा ही होगा ना, 114 से ज्यादा होगा। दैट्स ट्रू। तो आंसर इज डी। दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गाइस। J, L and M are elements in the periodic table. J has the highest density. Okay. J has the highest density. So J could be transition element क्योंकि तमाम transition element की density higher होती है। L has the highest reactivity with water. Oh, हाईएस्ट रिएक्टिविटी पोटेशियम की हो सकती है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी रुबीडियम की हो सकती है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीजियम की हो सकती है, बैरियम की हो सकती है। ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। एम हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। अबे यार, ये तो वन बाय वन देखना पड़ेगा। जे हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, सो ये गलत क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। इसकी भी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी भी डेंसिटी ज्यादा। सही है। ऑब्वियसली ब्रोमीन लिक्विड होता है, उसकी डेंसिटी कम होगी। एल हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर। कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कम होती है क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, रिएक्शन ही नहीं करता। ब्रोमीन वाटर में डिसॉल्व, रिएक्टिविटी कम होती है। तो लिथियम की ज्यादा होती है बिकॉज लिथियम इज अ मेटल, रिएक्टिव मेटल होता है। एम हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। So I think bromine has the highest atomic number. So right answer is going to be an A. Okay. My goodness, that's a tricky question. Which statement about elements in group 1 of the periodic table is correct? Rubidium has a greater density than cesium. No. रुबीडियम का जो मास है वो सीजियम से कम होता है, तो डेंसिटी भी कम होगी। सही है। Lithium has a higher melting point than potassium. That's true because down the group melting point decreases. और यही चीज मैंने ग्रुप 1 एलिमेंट पढ़ाते हुए आपको लिखवाई भी है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बट सी भी देख लेते हैं। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन रुबीडियम। दैट्स रॉन्ग। It is less reactive than rubidium because down the group reactivity increases. Okay, ये भी wrong, ये भी wrong. Option D, rubidium atom have more outer shell electrons than sodium atom. Actually, more outer shell electrons नहीं होते because both of them are found in the same group. Same valence electrons होते हैं दोनों में। ये भी गलत। Right answer is going to be B. Question 26. Which diagram shows a mixture of noble gases? Noble gases याद रखिएगा मोनोटॉमिक गैसेस होती है, मोनोटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो सी गलत क्योंकि ये डायटोमिक है। बी गलत क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक का मतलब मोर देन 2 एटम्स हैं, इसमें पढ़ाया मैंने आपको पॉलीएटॉमिक। सही है।
एंड सिंस वो कह रहे हैं मिक्सचर, तो इसका मतलब डिफरेंट गैसेस अवेलेबल होंगी। तो ये भी गलत, क्योंकि सेम गैस एग्जिस्ट कर रही है, सेम वन गैस, नॉट मिक्सचर। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी ए, बिकॉज ये मिक्सचर है क्योंकि डिफरेंट गैसेस है मोनोटॉमिक स्टेट में। 27, which statement about alloy brass is correct? alloy brass क्यों करेक्ट है, देखते हैं। it is harder than pure copper, that's true। alloys जो है वो प्योर मेटल से ज्यादा हार्डर होते हैं। it does not conduct electricity, that's wrong। can conduct electricity। alloys are the mixture of metals, they can conduct electricity। it is a mixture of copper and nickel, that's wrong। brass is basically a mixture of copper and zinc। okay, it is stronger than pure copper, yeah। so right answer is going to be B। uh, the bodies of aircraft are often made using aluminum। aluminum से इसलिए bodies बनाई जाती हैं because ये lighter होता है, and resistance to corrosion होता है। ठीक है। which two properties of aluminum make it suitable for this use? good conductor of electricity, poor conductor of heat, no। लो डेंसिटी होती है एयरक्राफ्ट के यूज के लिए करने ना, और स्ट्रॉन्ग भी होता है। जाहिर सी बात है, इतनी स्पीड से जाता है एयरक्राफ्ट, तो एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग तो होता है। तो इस खास यूज से रिलेटेड जो है ना वो बताना है आपने। सो जो हम एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, हम्म, ये सही है लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है। चलें, तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डी। दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 28 डी। Question 29. Four metals P, Q, R, and S are added separately to water and to dilute hydrochloric acid. The table shows the result. आप नोट करें, फिजिस रैपिडली इन बोथ द केस, इसका मतलब Q जो है मोस्ट रिएक्टिव है। इसको हम A कर देंगे। R जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा। इसको हम D कर देते हैं। अब आप नोट करें, यहाँ फिजिस स्लोली, फिजिस रैपिडली, यहाँ नो रिएक्शन, फिजिस स्लोली, इसका मतलब S मोर रिएक्टिव देन P। देन मीन्स ये C होगा। S इज मोर रिएक्टिव, तो ये B होगा और ये C होगा। ठीक है। सो P इज लेस रिएक्टिव ऑफ द फोर मेटल्स। नहीं जी, R इज लेस रिएक्टिव ऑफ द फोर मेटल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Q इज मोर रिएक्टिव देन S। Q इज मोर रिएक्टिव देन S, बिल्कुल सही बात है। एंड दैट्स योर आंसर आई बिलीव। Q जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ये लेस रिएक्टिव कह रहा है, जबकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। यही चीज हमने डिसाइड की है अभी।
आर इज मोस्ट रिएक्टिव, नहीं जी, आर जो है वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये भी गलत। क्वेश्चन 30, iron is extracted from its ore in the blast furnace. Which statement about one of the reaction in the blast furnace is correct? Carbon monoxide is reduced to carbon dioxide, नहीं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं जी, ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्टेटमेंट है, इक्वेशन ये होती है, ठीक है। और रीजन मैं दे देता हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कोक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन होती है और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी गलत। slag is produced when calcium carbonate reacts with calcium carbon dioxide, नहीं जी, slag जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों को रिएक्शन करने से बनता है, इट्स बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट व्हिच इज योर slag। The reaction that heats the blast furnace produces carbon dioxide, यार सारे ही गलत हो रहे हैं इसमें तो, am I missing something? The reaction that heats the blast furnace produces carbon dioxide. Okay. Oh yes. Oh yes, that's right. Because why? Because मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसको उठा के हम यहाँ साइड पे कर देते हैं, थोड़ा सा जगह दे लेते हैं। ये देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये एनर्जी रिलीज होगी, और जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये ब्लास्ट फर्नेस को हीट करेगी, और यही मैंने क्लास में भी बताया हुआ। Which pollutants found in river water lead to deoxygenation? Deoxygenation जो होता है वो यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है, so eutrophication causes deoxygenation। और यूट्रोफिकेशन जो है वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की लीचिंग की वजह से होता है। So 1 and 4 is correct, therefore B is going to be the right answer। 3 effects of air pollutants are listed, which effect are caused by oxides of nitrogen? Photochemical smoke, respiratory problem, acid rain, तीनों ही होते हैं, so A is the right answer। भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लंग्स इरिटेशन, लंग्स इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। So that these are the facts which you have done with me in the class in air and pollution ka chapter, which you need to remember that, and therefore it's a very straightforward question, answer is A। Fractional distillation is used to separate petroleum into its fractions, okay। Which statement about fractional distillation of petroleum is correct? The kerosene fraction is used as a fuel for ships, नहीं, kerosene तो नहीं यूज करते शिप्स के लिए, तो हम kerosene यूज नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। The fraction with the highest boiling point are extracted from the top, oh my goodness, highest boiling point are extracted from the top, not from the top, from the bottom। टॉप से तो वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। The naphtha fraction contains larger hydrocarbon molecule than the lubricating oil fraction, that's incorrect। lubricating oil fraction के अंदर ज्यादा कार्बन होते हैं as compared to naphtha। Next is refinery gas fraction contain hydrocarbon molecule which consist of 5 atoms, that's true। So right answer is D, क्योंकि ये फ्रैक्शन कॉलम के टॉप से निकलते हैं, ठीक है। जो 5 कार्बन एटम्स होते हैं ये फ्रैक्शनिंग कॉलम के जो टॉप है उससे निकलते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ये हाईली वोलेटाइल होता है। फर्टिलाइजर्स
are mixtures of different compounds used to increase the growth of crops. Which pair of substances contain three essential elements for plant growth? या three essential elements जो हैं वो आपको पता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम है, जिसको हम एनपीके फर्टिलाइजर भी कहते हैं. सो यहाँ से नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ से फॉस्फोरस मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत है. एनपीके, यहाँ से नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ से पोटेशियम मिल रहा है, फॉस्फोरस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत. ओ दैट्स कूल. यहाँ से नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ से फॉस्फोरस मिलेगा और यहाँ से पोटेशियम मिलेगा, यानी एनपीके इन इस इसके मिक्सचर से मिल जाएगा, which is why C is going to be the right answer. Okay. Which row gives the relative molecular mass and the first member of the named homologous series? Okay. एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन, और मीथेन का एमआर होता है 16. एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इज इथीन विच हैज अ फॉर्मूला ऑफ C2H4 और इसका एमआर होता है 28. इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. ठीक. अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर है वो CH3OH, दैट इज मेथनॉल, और इस मेथनॉल का हम एमआर निकालते हैं. 15 + 17 इज गोइंग टू बी 32. ओह, uh, 32. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट मेंबर है वो मिथेनोइक एसिड है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लिखवाया था, कहा था कि इसको भी याद करो. इसका एमआर कैलकुलेट करते हैं. इसका एमआर है 46. ठीक. इथेनोइक एसिड इज द सेकंड मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज और इसका एमआर 60 होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C, 36. A hydrocarbon decolorizes bromine water. भाई अगर हाइड्रोकार्बन डीक्लोराइज करा है इसका मतलब दैट हाइड्रोकार्बन मस्ट बी एन एल्कीन. सो एल्केन तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी एल्कीन. उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 हो सकता है, ये इथेन है विच इज एन एल्केन, तो ये भी गलत. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, अनसैचुरेटेड होगा, तो ये भी गलत. जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा, दैट्स ट्रू. राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी D. Which statement describes how ethanol is manufactured from ethene? इथीन से इथेनॉल बनाना है तो स्टीम यूज करेंगे हम, बिल्कुल सही बात है. एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेम्परेचर हमारा गलत है. टेम्परेचर नीड्स टू बी 300 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्टीम यूज करेंगे, दैट्स ट्रू. एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे, दैट्स ट्रू. 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे, दैट्स ट्रू. तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इथीन की फर्मेंटेशन नहीं होती है, फर्मेंटेशन ग्लूकोज की होती है. इथीन की फर्मेंटेशन नहीं होती, ग्लूकोज की होती है. 38. Ethanoic acid reacts with aqueous sodium carbonate. Which gas is given off in this reaction? Yeah, when any acid react with any metal carbonate, always carbon dioxide gas is given off, which is why B is going to be the right answer. Question 39. A mixture containing an aqueous salt, sand, and hot water is stirred. The mixture is then poured into the apparatus below. What is X? Obviously, sand. Aqueous salt is soluble in water. So ये सॉल्ट होगा एक्वस, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बिकॉज इनसॉल्युबल होता है. सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब जो एक्वस सॉल्ट है वो सॉल्युबल है
और जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हमेशा हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये इनसॉल्युबल है तो इसको हम हमेशा रेजिड्यू कहते हैं। सर फिल्ट्रेट ओनली, दैट्स ट्रू। सही है, तो 39 is A. Let's move on to the last question. A scientist uses a titration to calculate the concentration of acid in a sample of lemon juice. A measured volume of aqueous lemon juice and a few drops of indicator are added to the flask. The aqueous lemon juice is then titrated against 0.1 mole per dm cube NaOH. Which piece of apparatus is used to add aqueous sodium hydroxide to the flask? By the way, when you add something into the flask, you need volumetric pipette. Okay, and second thing, lemon juice with few drops of indicator is added to the flask. That means this lemon juice has to be in the, hold on. Oh, my bad. This lemon juice has, with few drops of indicator, are added to the flask. इसका मतलब it has to be in the conical flask. And obviously NaOH has to be in the burette. और जाहिर सी बात है मैंने इस वॉल्यूम को वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से मेजर किया था। कॉनिकल फ्लास्क में जब भी कोई चीज ऐड करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के थ्रू करते हैं। So burette is going to be the right answer. And that's the end of this paper, guys. Thank you very much.